I would like to introduce the personality which is among us. As I am going to tell you that he is not a person, but he is a personality with great achievements to become from a person to a personality. So his introduction is a Himalaya of achievements. So it is better to read into that event that who is going to motivate you and what achievements he has attained in his life. Mr. Rashmi Ranjan is an engineering graduate from the prestigious IIT Kolkata in Information and Technology, and he has done his first year and second year MBA in Marketing and International Trade from NITM Chennai. He has Masters in Psychology and PG certificate in Project Management as well. He has numerous other professional certifications like Green Six Sigma Belt, Bloomberg Career Counselor, Boss, Corporate Finance, Change Management, Digital Marketing, Operations Management, E-Governance, Social Entrepreneurship, Leadership, and No Blame Problem Solving, Inventory Management, etc. Mr. Ranjan has over 21 years of work experience in both US and India market in the field of sales and marketing, training and development, project management, quality control, change management, leadership and business growth, social entrepreneurship for several clients abroad. Mr. Rashmi Ranjan is currently the founder and CEO of the Project Udan, which is launched in December 2016 from the city of Gorakhpur, Uttar Pradesh, under the banner of his family-owned non-profit organization, Surya Veena Adarsh Niketan Trust, having CSIR and registration number both from the Indian government. Under the visionary leadership of Mr. Rashmi Ranjan, we are going to start this session which will inspire you for your future. Now I would like to hand over the mic to our respected guest so that the program will begin. Thank you. Respected Director Sir, respected Admin Sir, Principal Sir who is not present there due to some health issues, I convey my regards to him. Respected teachers of Academy Global, the brand in Purvanchal and soon to become the brand on Pan India, as I was discussing a few minutes back with the respected Director Sir, and all the dynamic students of this school of class 10. My warm regards, my best wishes to all of you. Can I have a round loud of cheer from you? Can I have that? Great. I can see the kind of environment out here. It's full of zeal, enthusiasm, positivity, and I think I term this as उड़ान. उड़ान means flight of life. जीवन की वो उड़ान जो आप लोग अब लेने वाले हैं कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम के साथ, आई थिंक ये आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्षण है। एंड मैं ये मौका आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आया हूँ जो मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके सामने मेरे प्रोफाइल को रखा गया। तो बच्चों, कुछ सवाल होंगे जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप बच्चे उस सवाल को बहुत ध्यान से सुने, हाथ उठाएं और जवाब दें। मेरा ये जो सवाल है बहुत ध्यान से सुनिए कि सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से या किसी और चीज से? Will you achieve success by hard work, luck or something else? कितने लोगों को लगता है मेहनत से मिलती है, सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती है? हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, ओके, कुछ लोग और हाथ उठा रहे हैं। अगर एंड तक मेरी आवाज जा रही है तो आई लव टू हैव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डियर स्टूडेंट्स, ओके। कितनों को लगता है कि किस्मत से मिलती है? किसी एक को लगता है, 1 2 3, ओके, 2-3 लोगों को लगता है किस्मत से। इसके अलावा किसी को लगता है किसी और चीज से सफलता मिलती है? एनीथिंग एल्स? ओके, आई एम श्योर आप लोग सभी विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं। कैन समवन टेल मी कि व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क की परिभाषा क्या है? क्योंकि आप लोग अब बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आगे की करियर प्लान करने वाले हैं, तो और कई लोगों ने कर भी लिया होगा,
तो कैन समवन डिफाइन व्हाट इज हार्ड वर्क? मेहनत क्या है? या देयर इज अ चाइल्ड वुड लाइक टू आंसर. Okay, very good. Sacrificing our comfort zone and working for something with a goal. Good response. Very good. और कोई? Only one child could answer. Hard work, सभी लोग कह रहे हैं कि hard work से बेटा सफलता मिलती है. But can you define hard work? Someone try to reply. मैं चाहूंगा आप बच्चे भी रिप्लाई करें एंड आपको जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आप लोग समझ पाएंगे इस सेशन का इंपॉर्टेंस कितना है आपके लाइफ में. ओके, अगर सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती तो सबसे ज्यादा मेहनत एक किसान करता है, कोई का बैल करता है, तो कितनी क्रेडिट आप किसान को दे पाते हैं सिर्फ मेहनत से? क्योंकि वो तो फिर आबो हवा मौसम से उसकी मेहनत बेकार भी हो सकते हैं. तो सिर्फ मेहनत से अगर सफलता मिलती तो किसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता, सबसे ज्यादा अमीर होता. आप समझ रहे हैं इस बात को? आप लोग मेहनत कर रहे हैं. कितने लोगों ने अपना करियर प्लान किया है? आई वुड लाइक टू कनेक्ट दिस विद योर करियर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड योर करियर और प्लान योर करियर? प्लीज रेज योर हैंड. फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज रेज योर हैंड. कितने लोगों ने अपना करियर प्लान किया है? ओके, कुछ लोग बताएंगे कितने लोग इंजीनियर बनने का प्लान किए हैं इसमें से? कैन यू रेज द हैंड? 1 2. हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान टू बी एन इंजीनियर? क्योंकि हार्ड वर्क और ये अगर आप समझ जाएंगे तो आई एम श्योर द वे आई हैव गॉट सक्सेस इन माय लाइफ यू विल आल्सो गेट इट. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान टू बी अ डॉक्टर? Doctor, how many of you? Good number of girls I can see have planned to be. Boys में से anyone? 1 for no be, you know, raise your hand. Okay, 1 2. Okay, engineering doc. Okay, you have decided to do BTech, BE or MBBS to be a doctor or BTech or to be an engineer. और कोई डिफेंस में कितने लोग जाना चाहते हैं? Defense. Okay, I can see a couple of girls also raising their hand for defense. Very good. Boys, 1. Okay, 2. So NDA, something like that. Okay, great. कितनों को लगता है कि सिर्फ मेहनत करके वो ये सफलता पा सकते हैं? और जो बाकी लोग हैं क्या वो अभी भी अपने करियर के बारे में श्योर नहीं है? This is what I can make it out. Okay, I'll help you out with every question I am asking to you, but do participate so that आपके प्रॉब्लम्स को, आपके एंजाइटी को, आपके डाउट्स को मैं इस समय रहते आज इस मंच से क्लियर कर सकूं. I am a global career counselor from University of California, founder of Udan, and also the designer of the famous test called UPCAT, Udan Personality Based Career Assessment Test. यह टेस्ट भारत के तमाम स्कूलों में कराया जाता है, जिसमें मात्र 30 मिनट्स में आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी से मिलता हुआ टॉप 50 करियर ऑप्शंस क्या है, ये तुरंत आधे घंटे में कंप्यूटर टेस्ट में पता चल जाता है. अब आप कहेंगे सर इस टेस्ट के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी? तो आई वुड कनेक्ट योर आइडियाज टू अ फिल्म कॉल्ड 3 इडियट्स. कितनों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है? मोस्ट ऑफ यू. वेरी गुड. उसमें फरहान नाम का कैरेक्टर याद है? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम एक्चुअली? Loud. Wildlife photographer. And actually what was he studying there? Engineering. Why? Because his father wanted him to be an engineer. Right? So, my only statement to you is, choose a career by choice, not by compulsion. मजबूरी में अगर आपने किसी करियर को चूज किया तो what did फरहान said? मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती है, अगर बन भी गया तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, कम कमाऊंगा, पर एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर खुश रहूंगा. बच्चों ये एक लाइन मेरे स्पोर्ट्स को उसने दिशा दी. एंड आई डिजाइन दिस टेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड उड़ान फ्रॉम सिटी ऑफ गोरखपुर. और आज आप यूट्यूब चैनल उड़ान बाय रश्मि रंजन पर जब भी आप जाएंगे 250 वीडियो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश के IAS अधिकारियों की भी मैंने 2 क्लासेस ली दिल्ली गवर्नमेंट के. यूपी एंड दिल्ली गवर्नमेंट एक ग्रुप प्रोजेक्ट है
पर ये सब शुरू कहां से हुआ? नथिंग वॉज प्लान। आई केम एज एन एम्प्लॉय, एज अ सेंटर इंचार्ज ऑफ अ लीडिंग कंपनी इन गोरखपुर, ट्रांसफर्ड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू केरला एंड देन केरला टू गोरखपुर। और यहां मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब अपनी आइडियाज पर काम करता हूं, एंड आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप कॉल्ड उड़ान। And within a year time, more than 3,000, 4,000 students, teachers got trained in Udan. And then there was no looking back. आज लिस्ट बहुत लंबी है। कोल इंडिया, पोस्टल डिपार्टमेंट, डेल, NTPC, TCIL, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, चेन्नई, गैलेंट, पंजाब स्टेट, ऐसे करते हुए 50 क्लाइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बच्चों, ये शुरुआत कैसे हुई? अगर सिर्फ हार्डवर्क होता तो शायद आज मुझे ये मंच, इतना प्रेस्टिजियस मंच मुझे नहीं मिलता। इट्स ऑलवेज एन ऑनर कमिंग बैक टू एकेडमी ग्लोबल, टॉकिंग आइदर टू द रिस्पेक्टेड टीचर्स और टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, टू द काइंड विजन ऑफ द ऑनरेबल डायरेक्टर सर। बच्चों, आपको समझना, ये चीज मैं समझाना आपको चाह रहा हूं, हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है और ना ही किस्मत से। And how do you define hard work and luck? Let me give you a scientific explanation for this. Working, what is the formula of work? What is the formula of work in science? Force into displacement. Work is equal to force into displacement. Now suppose the director sir gave me an assignment. रंजन जी, आई पे यू 500 रुपीज फॉर 8 आवर्स। मान लो मैं एक मजदूर हूं और इन्होंने मुझसे कहा 8 घंटे का 500 रुपए मिलेंगे। इसको आज समझ लोगे तो बहुत बड़ी कुंजी सक्सेस का लेकर आप लोग जाओगे घर। और अगर आपने इसको एक अनदर इवेंट समझ के मिस कर दिया तो लाइफ लॉन्ग रिपेंट करोगे आप, क्योंकि आपको इस तरह की काउंसलिंग और गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। फिर इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। हार्डवर्क, 8 घंटे की मेहनत, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि आपके स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या असर पड़ता है। इन्होंने मुझे कहा 8 घंटे का 500 रुपया डिसाइड हो गया। कहा एक दीवार है, इस दीवार को हटाना है अपने जगह से। मैं आया और मैंने उसे धक्का देना शुरू किया। और आपको पता है हमारे भारत में क्या लाइन्स यूज होते हैं? मेहनत की कमाई, गाढ़े पसीने की कमाई। These are the words which we use in India, right? मैंने इसे धक्का देना शुरू किया। 8 घंटे मेहनत के बाद भी मैं सिर्फ एक बाल्टी पसीना लेकर अगर जाऊं इनके पास और कहूं सर ये मेरा पसीना है 8 घंटे का, प्लीज पे 500 रुपीज फॉर दिस, हाउ विल बी हिज बिहेवियर? ही विल बी इरिटेटेड, यू नो, अगेंस्ट, ही वुड बी शाउटिंग कि क्या मुझे बेवकूफ समझ रखे हो? बच्चों, हार्डवर्क तो मैंने पूरा किया, आप भी करते होंगे, 8-8 घंटे 5-5 घंटे मेहनत करते होंगे, पर जब आपको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलता है, जब आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, तब वो यही स्टेटमेंट कहते होंगे कि तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। फिर आप डिमोरलाइज होते होंगे कि मैंने तो 8 घंटे मेहनत की, रोज किया, नहीं आया रिजल्ट, तो मेरे मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। बट साइंस हैज टॉट यू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की परिभाषा क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कितने भी न्यूटन फोर्स लगा दूं, अगर मैं इस दीवार को इस जगह से नहीं हटा पाया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो वर्क इज इक्वल टू 0, चाहे मैंने उसमें कितना भी न्यूटन फोर्स लगाया हो मैन्युअली। बट हैड आई ब्रॉट ए स्मॉल मैकेनिकल सपोर्ट, मैं इस दीवार को इसकी जगह से हटा सकता था। यानी यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी, राइट टेक्निक, राइट अप्रोच, आई कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क विद इन 10 मिनट्स। क्लियर एवरीवन? उसके बाद आता है लक। व्हाट इज लक? आप लोग कहते हैं ना किस्मत खराब थी यार, वरना मैं 2 नंबर से क्लियर कर जाता इस पेपर को, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर ब्रदर, सिस्टर, कॉलीग्स या नेबर्स जिन्होंने कहा मेरी किस्मत खराब है। व्हाट इज किस्मत? आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना सबने। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए डायस इन एन अटेम्प्ट इज 1/6, बट व्हाट इज द चांस ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 इन अ सिंगल थ्रो इज 5/6।
यानी नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल, जो अनसक्सेस के चांसेस हैं, जो फेलियर के चांसेस हैं, वो है 5/6, while द सक्सेस का रेट है 1/6। तो आप क्या करते हैं, फिर से आप डाइस फेंकते हैं, यू टेक मोर चांसेस सो दैट कि आपको 6 आए उस लूडो में, या जो डाइस आप फेंक रहे हैं, राइट। ये आपको समझना जरूरी है। किस्मत इज ऑल अबाउट चांसेस, हमेशा 1/6 ही रहता है। बट आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने होंगे, अपनी अप्रोच बढ़ानी होगी। तो अगर किसी को याद रहे इस बात को, तो ना सक्सेस हार्डवर्क से मिलता है, ना लक से, वो मिलता है स्मार्ट वर्क से। एंड SMART का मतलब आज आप समझ के जरूर जाए। S से होता है स्पेसिफिक, क्या करना है, व्हाट इज द गोल इन लाइफ, किस चीज के लिए मेहनत करनी है, बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है, सो बी स्पेसिफिक अबाउट इट। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सफलता पानी है, इफ यू आर टॉकिंग लाइक दैट, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। यू विल ऑलवेज कीप वॉचिंग अदर्स गोइंग टू द पोडियम एंड टेकिंग द फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। बी स्पेसिफिक, करना क्या है। अगर फिजिक्स पढ़ना है, अगर साइंस पढ़ना है, उस समय 2 घंटे साइंस ही पढ़ना है। देयर इज नो अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश और हिंदी कमिंग इन द वे। बी स्पेसिफिक। एम से हो गया मेजरेबल, क्या आप मेजर कर पा रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना सुधरा है, थ्रू सम एग्जाम्स, मे बी सम सेल्फ टेस्ट, सम मॉक टेस्ट, मेजरेबल। उसके बाद ए से आता है अचीवेबल, जो टारगेट आपने फिक्स किया है, इज इट अचीवेबल और इज इट समथिंग जो आपने रेत के टीले, हवाई कीले बनाए हैं, जो एक रात में ही बदल जाता है। नहीं, अब मैं सोच रहा हूं एनडीए ना करूं, अब मैं भी बाकी दोस्तों की तरह आईआईटी की तैयारी करूंगा। सो आर योर ड्रीम्स एवरी नाइट, इज इट गेटिंग सैटर्ड अवे, और आर यू रियली फर्म विथ योर ड्रीम्स कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वॉट एवर आई हैव थॉट आई विल अचीव इट। सो अचीवेबल। आर से हो गया रियलिस्टिक। Have you taken the realistic planning to achieve your target? मैं भी कोटा चला जाऊंगा, मैं भी लखनऊ चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, मैं भी रूम लेकर पढ़ाई करूंगा। बट सबसे पहली चीज है, डू यू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, कि आप कहीं भी रूम लेकर जब पढ़ाई कर रहे हो, आर यू एक्चुअली डिसिप्लिन फ्रॉम योर स्कूल डेज? हैव यू रियली परफॉर्म इन योर स्कूल लाइफ? क्योंकि ये सारी चीजें जो इवेंट्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मोमेंट प्लेजर है। मोमेंट यू आर बीइंग गिवन और ड्यू रिस्पेक्ट एंड अटेंशन बाय द स्कूल मैनेजमेंट, cheering you up for the upcoming board exams and for your life ahead. But life को आपको जीना है, and if it doesn't go in a smart way, you are going to repent after few years. So R is realistic, and then comes T, timely. क्या आप ये सारी चीजें प्लानिंग, एक टाइम मैनेजमेंट के अनुसार कर पा रहे हैं? यानी अब आप कहेंगे सर 24 घंटे में 6-7 घंटे तो स्कूल में निकल जाते हैं, घर जाते हैं, फिर ट्यूशंस की बात आती है, यू नो वी हार्डली गेट टाइम टू डू सेल्फ स्टडी एंड आवर अदर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। होता है ना, कितनों को लगता है कि वॉट एवर आई एम सेइंग मेक्स सेंस टू देम? हाउ मेनी पीपल रियली थिंक? प्लीज रेज द हैंड। कितनों को लगता है कि इट मेक्स सेंस? कितनों को लग रहा है? कुछ लोगों को लग रहा है। नो, यू कैन रेज योर हैंड कि आपको बात समझ में आ रही है। लास्ट में जो है, आपको मेरी बात कनेक्ट हो रही है, समझ में आ रही है? ओके, गुड। तो स्मार्ट अप्रोच जो है, ये आपको हेल्प करेगा। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बात बता दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एज ए करियर काउंसलर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू। गोइंग बैक टू, अच्छा इसमें से बिफोर टेकिंग द अनदर एजेंडा और इसको आगे बढ़ाने, कितनों को मैथ से डर लगता है? One who wants to get okay, be honest, आज आपको इसका रास्ता भी मिलेगा, and I'll tell you my own story from being a failure in maths to being the India's second highest in maths in CBSE class 10th board. That story, how many would like to hear and know the approach? बहुत लोग हैं पीछे। How many of you really want to know about it? कितनों को लगता है मैथ्स में उनको fear and they want to come out of it? Be honest.
ऑनेस्ट रहिए, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। ओके, सो मेनी ऑफ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट आगे ले जाना चाहते हैं या लाइफ में मैथ्स का इस्तेमाल एक जुडिशियस तरीके से करना चाहते हैं, वो इस स्टोरी को और पूरी अप्रोच को ध्यान से सुने, क्योंकि स्मार्ट तो आप समझ गए कि हार्ड वर्क, मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी और ना किस्मत पे छोड़ने से मिलेगी। स्मार्ट वर्क अप्रोच ही आपको सफलता दिला सकता है।